Hello guys, welcome back to your own channel, that is Smart English Learning with Sushma Ruhal. In this video, we will learn about Modas with its rules and examples. And if you want to watch my rest of the videos, you should go to the channel, go to the playlist in writing section for writing section playlist, and for grammar writing. And if you want to watch literature videos, then go through the literature videos there, right? But first of all, you have to subscribe the channel, then go to the playlist. If you want to watch rest of the detailed videos, then go to the playlist there, right? So in the beginning, I will tell you modas. So this is correct pronunciation is modas, not modals. Modals means you will use in the science projects there, right? Those will be modals, but this is your modals, right? So what is the definition of modas here? Modas are a special group of auxiliary verbs used to express certain meanings like permission. Means what is modas there? Modas we have to always use for the permission, for showing ability, for showing possibility, or for giving suggestions there, right? For permission, for intention, for request, for prohibition, or for necessity. Prohibition means to ban on something. Necessity means some is necessity there, or for wish. So these are the words which we have to use in place of modas. So for these work means what is the work, like for getting permission you have to use modas, for showing ability you have to show modas, for possibility you have to show any modal. Okay, next you have to suggestions. If you want to give some suggestions, then also you have to use some modals, right? And for giving permission, or for the promise, for intention, for request, for ban on something, or for necessity, or for the wish. So for these kind of purpose you have to use modals here, and modals will always help you and will tell you what is your mood or what is your attitude. So it will tell you means modas will tell you your mood or what is your attitude, right? Next I will say some commonly modas which you always use, like can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to and dare to. कैन मीन्स प्रेजेंट टेंस में कि कोई काम कर सकते हैं एबिलिटी के लिए. कुड मीन्स पास्ट टाइम में जो आपकी एबिलिटी थी उसको शो करने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए. मे मीन्स शायद, बट पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है. माइट होता है शायद, माइट में पॉसिबिलिटी बहुत बहुत कम होती है, ना के बराबर. विल होता है जिसमें 100% श्योरिटी हो कि हाँ वो काम करेगा. वुड मीन्स क्या होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए. सारे आपको डिटेल सामने आएंगे. शेल होता है लेस पॉसिबिलिटी के लिए. और शुड किस लिए क्या होता है, चाहिए, कोई काम चाहिए, सजेशंस के लिए. मस्ट भी 100% कंपल्शन आपको करना ही पड़ेगा. और टू की सेंस भी चाहिए की सेंस में ही आपकी आते हैं. और डेयर मीन्स किसी काम को करने की हिम्मत दिखाना, राइट? सो मोडास आर देयर एबिलिटी. अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, सी can you will use for the present like to indicate the ability to do something, be capable or know how to. मीन्स लाइक जया कैन प्ले द फ्लूट, वो प्ले कर सकती है. प्रेजेंट टेंस में कोई काम कर सकना, एबिलिटी शो करना, उसके लिए कैन का यूज करते हैं, ठीक है. कुड क्या होती है, हमारी पास्ट टाइम की एबिलिटी शो करती है, जैसे आई कुड डू समरसेट इन द चाइल्डहुड. तो मैं भी चाइल्डहुड में कोई काम कर सकता था, ठीक है. अगर कुछ काम हम कर सकते थे तो हम चाइल्डहुड में कर सकते थे, तो उसके लिए हमने कुड लगा दिया पास्ट टेंस की एबिलिटी के लिए. ओके, नेक्स्ट आपका यही आपका सेम रहेगा, लाइक टू बी एबल टू, किसी काम को करने के लिए एबल होना. और कुड के लिए कि किसी काम को एबल करने के लिए मैं था पहले लेकिन अब मैं उस काम को नहीं कर सकता, तो इसके लिए आप यूज करते हो कुड का. नेक्स्ट यू हैव टू यूज मे जो आपका होता है वो 100% जो पॉसिबिलिटी होती है कि हाँ हमारी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है किसी काम को, तो आप उसके लिए आप मे का यूज करते हैं. जैसे टू आस्क फॉर अ फॉर्मल परमिशन पोलाइटली, आप पोलाइटली किसी से पूछते हो मे आई लीव नाउ, भी मैं जा सकता हूँ. मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ. मे आई स्टेप इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. तो आपको पॉसिबिलिटी कि हाँ भी आपको मना नहीं करेंगे, तभी आप मे का यूज करते हो. कैन का यूज कहाँ पे करते हो, टू आस्क इनफॉर्मल परमिशन, जब आपको लगता है कि शायद ही आपके कोई मतलब विश पूरी हो. कैन आई बोरो योर फोन टू मेक अ कॉल, आपको लगता है कि शायद वो मना भी कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको कैन का यूज कर सकते हैं यहाँ पर. और परमिशन के लिए आप कुड का यूज भी करेंगे, या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड कैसे, लाइक कुड यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, जैसे कहते हैं वुड यू प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वुड यू प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो वुड भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होते हैं. और कुड बहुत ज्यादा पोलाइटली शो करने के लिए आप यहाँ पर यूज करते हो, और वुड भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है. इन कंपेयर टू मे की जगह जैसे होता है ना, मे यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो मे से ज्यादा पोलाइट होता है कुड, तो उसके लिए
डबल पोलाइटनेस के लिए। तो ये सजेशन करते हैं फॉर्मल परमिशन को। फिर आता है आपका मे। फिर से किसके लिए मे आप यूज करें? पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। ये तो था परमिशन के लिए, अभी ये आगे पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। मे में पॉसिबिलिटी, गुड पॉसिबिलिटी मतलब अच्छी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी होती है। अगर आप मे का यूज करो इट मीन्स आपकी पॉसिबिलिटी ज्यादा उसके काम को करने की, ठीक है। माइट का यूज करें मतलब वीक पॉसिबिलिटी, बहुत बहुत कम पॉसिबिलिटी है। लाइक जैसे इट में रेन टुडे टुडे एंड क्लाउड्स आर इन द स्काई, स्काई में क्लाउड है तो बारिश होने की बहुत ज्यादा चांसेस है, तो आप मे लगाओगे। इट में रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, द स्काई इज ब्राइट, अगर स्काई ब्राइट है तो रेन होने के बहुत कम चांसेस है, तो यहाँ पर माइट लगेगा। कैन कहाँ पे होता है? इंडिकेट जर्नल और ओकेजनल पॉसिबिलिटी, अगर कोई ओकेजनल थिंग हम करें उसके, लाइक आई कैन कम विद यू टू द पार्टी टुनाइट, मैं आपके साथ आ सकता हूँ, मतलब ओकेजन है, ओकेजन के लिए हम इसको यूज कर रहे हो, कैन को यूज कर रहे हैं। ओके अगर आपको कुड का यूज करना तो वीक पॉसिबिलिटी के लिए, कैसे कि समीर कुड पार्टिसिपेट इन द मैराथन विद सम एनकरेजमेंट, भाई शायद ही वो पार्टिसिपेट करे। अगर कम पॉसिबिलिटी के लिए कि शायद ही पार्टिसिपेट कर सकता था वो इसमें, तो शायद बहुत कम पॉसिबिलिटी है, तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे? कुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट जैसे होता है आपका मोडाल्स एडवाइस के लिए, एडवाइस देने के लिए शुड का यूज करते हैं, सजेशंस देने के लिए। और ऑब्लिगेशन मतलब किसी पे एहसान करना, उसके लिए आप किसका यूज करते हो, अब आपको यहाँ पे बताएंगे। शुड क्या होता है? टू गिव एडवाइस और सजेशन, अगर आप किसी को सजेशंस दे रहे हो, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, तो उसके लिए आप यूज करेंगे शुड का। और अगर जैसे कि यू शुड यूज अ डिफरेंट कलर ईयर, यहाँ पर आपको ना डिफरेंट कलर यूज करना चाहिए। आप सजेस्ट करो, सजेशन आपने दिया, अब वो माने या ना माने वो उसकी मर्जी होती है, ठीक है। पीपल शुड नॉट लिटर इन पब्लिक प्लेसेस, जो पीपल हो लोगों को मतलब खुली जगह पे लीटर नहीं करना चाहिए, कुछ गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तो ये सजेशंस दे रहे हैं, अब वो नहीं मानेंगे तो उनकी मर्जी है, लेकिन हम तो सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब ought to में भी चाहिए ही होता है, शुड में भी चाहिए होता है, ought में भी चाहिए, लेकिन ought to किसके लिए? तो ऑब्लिगेशन, किसी पे हम एहसान करें उसके लिए। टू कन्वे अ सेंस ऑफ मॉरल ड्यूटी, आपको मॉरल ड्यूटी बतानी है, सजेस्ट करना एक राइट वे कि आपको ये काम करना चाहिए। इट इज लिटिल स्ट्रॉन्गर देन शुड, ये शुड से ज्यादा मतलब थोड़ी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। यहाँ पर अगर आप किसी और टू को यूज कर रहे हो, देखो शुड और टू का मीनिंग सेम है, बट अगर आप और टू को यूज करो इट मीन ज्यादा पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्गर है, किससे? शुड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है हमारा और टू। तो कैसे? यू ought टू रिस्पेक्ट योर एल्डर, भाई तुम्हें ना अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, मतलब ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ज्यादा आपकी क्या है पोलाइटनेस है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर है ये शुड से। एक तो यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ठीक है, करना चाहिए। और टू मीन्स उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी, अगर इसकी पॉसिबिलिटी 50% है तो इसकी 80% है कि आपको ये काम करना चाहिए। और मस्ट में तो फिर 100% आ जाता है। यू ought टू एक्सरसाइज डेली टू रिमेन हेल्दी, अगर हेल्दी रहना है ना तो आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी चाहिए, ठीक है। तो करनी ही करनी चाहिए, इसका मतलब पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आपको ये ज्यादा काम करना चाहिए। अगर आपको हेल्दी रहना तो करना ही पड़ेगा, हेल्दी रहना तो करना ही पड़ेगा। और अगर आपको एल्डर्स का रिस्पेक्ट करोगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कि उसने सिर्फ सजेस्ट किया कि आप डिफरेंट कलर यूज करो, यहाँ पर आपने सजेस्ट किया करना करो वरना मत करो, बट यहाँ पर आपकी मोरल ड्यूटीज आ जाती है। यहाँ पर जब भी आपकी मोरल वैल्यूज मोरल ड्यूटीज आती है तो वहां पर ought टू आएगा शुड की जगह पे, राइट। नेक्स्ट इज द अगेन अगर आप रिक्वेस्ट करते हो, रिक्वेस्ट करते हो कैसे? विल में, जैसे टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कैसे? विल यू कैरी दिस बैग फॉर मी प्लीज, प्लीज आपका पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आ गया। विल दोबारा से फिर आपका पोलाइटनेस को शो कर रहे हैं, ये आपको रिक्वेस्ट शो कर रहे हैं, तो मोर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आपने विल का यूज कर दिया। और वुड भी आता है यहाँ पर कैसे? टू मेक रिक्वेस्ट मोर पोलाइट देन विल, अगर आपको बहुत ज्यादा पोलाइटनेस यूज करना चाहते हो किसी के लिए, आपको मैं तो बहुत पोलाइटनेस यूज करूंगा भाई, ये मेरा फेवरेट पर्सन है, तो उसके लिए आप वुड का यूज करेंगे, विल का नहीं। विल का यूज कहाँ पर करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन आप ज्यादा पोलाइटली नहीं बोलना चाहते, बस आप नॉर्मली बोलना चाहते हैं कि विल यू कैरी दिस बैग फॉर मी प्लीज, जिस फॉर्मेलिटी के लिए आप करते हो। लेकिन अगर आप एक्चुअल में किसी को रिस्पेक्ट देना चाहते हो तो आप वुड का यूज करो। ये वुड जो डबल पोलाइटनेस के लिए आपका होता है। वुड यू स्विच ऑफ द फैन प्लीज, आप बहुत पोलाइटली बोल रहे हो, उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें वुड आएगा। वुडंट, तो ये कहें वुडंट टू मेक अ रिक्वेस्ट, किसके लिए? रिक्वेस्ट करने के लिए। वांट यू गेट मी समथिंग टू ड्रिंक, क्या आप मेरे लिए कुछ पीने का नहीं लेके आओगे? क्या आप मेरे लिए कुछ पीने का नहीं लेके आओगे? तो ये आपका आता है रिक्वेस्ट के लिए। कैन का किस लिए आ गया?
टू मेक एन इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, मतलब इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करेंगे तो ठीक है भाई, कैन आई हैव सम मोर बिस्किट, भाई क्या मैं थोड़े से और बिस्किट ले सकता हूँ। अगर कुड का यूज करोगे तो ज्यादा पोलाइटनेस के लिए आ गया, ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। कैसे? टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट व्हेन इट इज अनसर्टेन वेदर इट विल बी एक्सेप्टेड और नॉट। देखो अगर आपको लगता है कि भाई ये शायद एक्सेप्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो चांसेस कम है यहाँ पर कुड के चांसेस कम है, यहाँ पर कैन के चांसेस ज्यादा है। तो मदर कुड यू बाय मी दैट ड्रेस प्लीज, क्या आप, भाई मुझे लगता तो नहीं कि मदर परचेज कर देगी, लेकिन फिर मैं पूछ के देख तो लेता हूँ, अगर वो परचेज करेगी तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी कम है हमारी, क्योंकि यहाँ पर अनसर्टेन है, ठीक है। मोर पोलाइटनेस के लिए तो वो तो होता है, वो आपका मोर पोलाइटनेस शो करने के लिए तो पोलाइटनेस आ गई, बट यहाँ पर रिक्वेस्ट, देखो रिक्वेस्ट का ध्यान रखो, अगर कैन है तो ज्यादा रिक्वेस्ट, यहाँ पर अगर कैन है, अगर कुड है तो इसका मतलब हम कम पोलाइटली रिक्वेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसका मतलब मुझे पता है कि भाई शायद ही मेरी मदर जो इसको खरीद सकती थी मेरे लिए, तो अगर कम कम चांसेस है, अगर अनसर्टेन है, नहीं है श्योरिटी, तो उसके लिए आप कुड का यूज करेंगे। मदर कुड यू बाय मी दैट ड्रेस प्लीज, क्या आप मेरे लिए वो ड्रेस खरीद सकते थे प्लीज, क्या खरीदोगे? तो ये क्या होगा आपके लिए, कुड का यूज करें कि भाई शायद ही वो खरीदे। देखो ये जो मोडाल्स होते हैं ये सारे डिपेंड करते हैं सिचुएशन पे और आपकी प्लाइट पे। प्लाइट में से सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। आप एक ही फिल इन द ब्लैंक में विल भी लगा सकते हो, एक ही फिल इन द ब्लैंक में वुड भी लगा सकते हो। अब ये डिपेंड करता है आप पे कि सिचुएशन कैसी है आपके सामने। अगर सिचुएशन कम पॉसिबिलिटी की है, कम पोलाइट रिक्वेस्ट की, तो विल को यूज करेंगे। अगर कुछ ज्यादा पोलाइटनेस आप यूज करना चाहते हो तो वहीं पे वुड का यूज कर दोगे। तो ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे सारे के सारे मोडास। अब जैसे मस्ट होता है, मस्ट तो देखो भाई 100% के लिए तो ये सबको पता है, शुड नॉट बी डन बिकॉज इट्स अ रूल। मस्ट नॉट का भी इसने मतलब कुछ जो है वो जरूरी है जो नहीं होना चाहिए, तो कुछ चीज ऐसे जो जरूरी नहीं होनी चाहिए। कैसे भी स्टूडेंट्स को जो क्लासरूम नहीं छोड़ना चाहिए टीचर की परमिशन से भी, बिल्कुल। अगर टीचर पढ़ा रही है क्लास में तो ये तो है नहीं कि कोई भी एकदम से उठ के चला जाएगा, तो मस्ट है कि मस्ट नोट नहीं निकलना चाहिए। तो 100% पॉसिबिलिटी कि आपको नहीं जाना है, जब क्लास में आप एक बार आ गए तो आपको ऐसे उठ के नहीं जाना विदाउट परमिशन। विदाउट परमिशन बोला यहाँ पे, वैसे तो जा सकते हैं ठीक है, लेकिन विदाउट परमिशन नहीं जा सकते, तो मस्ट नोट आना चाहिए यहाँ पर। ओट नॉट टू, बिग प्रोहिबिशन है यहाँ पर, बैन के लिए बता रहे, प्रोहिबिशन के लिए। ओट नॉट टू मींस नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? यू ओट नॉट टू लाफ एट अदर्स फॉर देयर वीकनेस, भाई किसी की कमजोरी पे आपको हंसना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये क्या गया, इंडिकेट करता है समथिंग शुड नॉट बी डन बिकॉज इट इज अ ड्यूटी। देखो हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। तो अगर इस तरह की ड्यूटीज हमारी है कि हमें नहीं हंसना चाहिए किसी के ऊपर, किसी की वीकनेस पे नहीं हंसना चाहिए, तो ये हमारा क्या गया, प्रोहिबिशन है। इसमें ओट नॉट टू आएगा। और मस्ट नॉट कहाँ पे आएगा, जहां पे 100% कंपल्शन है कि आपको ये काम नहीं करना, राइट। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉमिस के लिए। अगर आप प्रॉमिस करते हो तो विल कैसे यूज होता है, टू सजेस्ट प्रॉमिस और इंटेंशन। आप सजेस्ट करोगे प्रॉमिस और इंटेंशन को कि आपका इरादा क्या है, ठीक है। कैसे, जैसे आई विल अटेंड योर बर्थडे पार्टी बिफोर लीविंग फॉर जयपुर, वे जयपुर जाने से पहले मैं आपकी पार्टी अटेंड करके जाऊंगा। आई विल ट्रांसफर, देखो यहाँ पर विल और शैल की किस लिए आ गई, अगर आपकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि हाँ भी मैं 100% इस काम को करके ही जाऊंगा, करूंगा ही करूंगा, तो यहाँ पर विल लगा देना। चाहे वो आई है, ही है, शी है, इट है, कुछ भी वो मैटर नहीं करता। यहाँ पर मैटर करता है पॉसिबिलिटी काम की, कि अगर पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि हाँ भाई आप उस काम को करोगे करोगे, तो आपकी विल आएगा। और अगर उस प्रॉमिस को पूरा करने की जो आपकी पॉसिबिलिटी है वो कम है, तो उसमें शैल लगाना, चाहे वो यू शैल आए, चाहे दे शैल आए, चाहे वी शैल आए, चाहे ही शैल लगाओ, चाहे शी शैल लगाओ। अब देखो यू के साथ शैल आपने बहुत कम देखा है, दे के साथ शैल बहुत कम देखा। तो एक बात ध्यान से रखना यहाँ पर बिल्कुल, कि विल का यूज हम वहां करेंगे जहां पर हम कोई भी काम करने के लिए डेफिनेटली 100% श्योर है, तो वहां पर विल का यूज करो। अब चाहे वो सिंगुलर है प्लूरल, ये मैटर नहीं करता, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। बट अगर आप यूज करते हो शेल का, तो शेल का यूज कहां पर होगा, लेस पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, कि अगर आपकी पॉसिबिलिटी कम है किसी काम को करने की कि मैं ये काम करूंगा, ठीक है। यू शेल रिसीव माई लेटर बाय टुमारो, भाई तुम मेरा लेटर कल तक मतलब पालोगे, इसका मतलब मेरा इरादा नहीं है कि मैं 100% उनको कल तक ही दूंगा,
ठीक है, दे शैल गेट देयर ड्यूज बाय द एंड ऑफ दिस वीक। अब उसने कहा कि तुम्हारे जो ड्यूज है ना वो इस वीक के एंड तक मिल जाएंगे, आपको मैं दे दूंगा। इसका मतलब कहने का कि आप 100% श्योर नहीं हो कि आप उसको दोगे। अगर यहाँ पर आप विल लगा देते हो तो इसका मतलब 100% श्योर हो कि इस वीक के एंड तक आप दोगे। तो सारी की सारी चीजें सॉरी डिपेंड करती है आपकी सिचुएशन पे, कि अगर आपकी इंटेंशन, अगर आपका प्रॉमिस 100% है कि हाँ भाई मैंने डेफिनेटली करना है, डेफिनेटली वर्ड के लिए आप यूज करेंगे विल का। और अगर डेफिनेटली वर्ड आप नहीं यूज कर रहे हो तो उसके लिए आप यूज करोगे शैल का, लेस पॉसिबिलिटी के लिए। ये ध्यान रखना, चाहे वो ही है, शी है, इट है, यू है, वी है, दे है, कुछ भी है, तो वो सिर्फ मैटर नहीं करता, मैटर करता है पॉसिबिलिटी, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है फंक्शन मस्ट का, कि मस्ट आपको पता है कि 100% अथॉरिटीज की जो बात आती है, यहाँ पर अथॉरिटीज जहाँ पर प्रिंसिपल्स होते हैं वहां पर आप मस्ट का यूज करेंगे। जैसे वी मस्ट सेव समथिंग फॉर फ्यूचर, भाई फ्यूचर के लिए तो कुछ ना कुछ बचाना ही पड़ेगा। या वी मस्ट सेव द ट्रीज, ट्रीज को बचाना पड़ेगा। वी मस्ट सेव एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को बचाना। तो ये 100% हमारे होते जो हमें करना ही करना चाहिए। हैव टू तो कुछ काम मतलब हमें कुछ काम करना पड़ा कैसे सजेस्ट करता है एक्सटर्नल कंपल्शन को, और अथॉरिटी कम्स फ्रॉम आउटसाइड टू द स्पीकर। जैसे माय मदर इज नॉट वेल, मेरी मदर जो है वो सही नहीं थी, वो अनहेल्दी थी। आई हैव टू गो एंड गेट मेडिसिन, में मुझे जाना पड़ा, जब कहीं करना पड़ा। आई हैव, आई के साथ हैव लगता है तो आई हैव, शी है तो शी हैज टू, ही है तो ही हैज टू, प्रेजेंट टेंस के लिए। अगर आप इसी को पास्ट में यूज करोगे कि कोई पास्ट टाइम में है आपका और कोई काम आपको करना पड़ा, तो क्या करोगे, आई हैड टू। तो हैड तो सबके साथ लगता है, जैसे आई हैड, ही हैड, शी हैड, वी हैड, दे हैड। तो हैड तो सबके साथ लगेगा, चाहे आपका सिंगुलर है या प्लूरल है। बट यहाँ पे अगर आपका आई है, आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, ठीक है, लेकिन ही के साथ हैज टू, शी के साथ हैज टू, इट के साथ हैज टू आएगा। और जहां पर हैज टू, हैव टू, हैड टू आते हैं, तो हैज और हैव टू तो आते हैं कोई काम प्रेजेंट में करना पड़ा। ठीक है, कोई काम करना पड़ा कि आपको, आप ये काम कर रहे हो, करना पड़ा आपको। और हैड टू जो है वो यूज होता है कोई काम आपको पास्ट में करना पड़ा। और एक बात ध्यान रखना, हैज टू या हैव टू के बाद जो फॉर्म आएगी वो फर्स्ट फॉर्म आएगी, ध्यान रखो। आई हैव टू गो आया है, आई हैव टू गोन नहीं आया। अब यहाँ पर हैव के बाद टू लगा, टू के साथ वैसे भी हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी टू के बाद हमें फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है, इस टू के बाद भी फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, इस टू के बाद भी फर्स्ट फॉर्म ही यूज की, टू के बाद भी देखो टू पे फर्स्ट फॉर्म है, टू स्टे फर्स्ट फॉर्म है, टू फिनिश फर्स्ट फॉर्म है, और टू गो फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो मीन्स कहने का कि ये मत सोचना कि हैज है और हैड लगा तो आप थर्ड फॉर्म लगा दोगे, नहीं। जब हैज या हैव या हैड के बाद टू लग गया ना, तो टू के बाद तो हमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, उसके बाद आपको थर्ड फॉर्म नहीं लगानी। कंफ्यूज नहीं होना कि हैज, हैव और हैड है तो आपको थर्ड फॉर्म लगानी, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो अगर आपको प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी कोई काम करना पड़ा तो प्रेजेंट के लिए आप हैव टू या हैज टू लगाएंगे, जो आपका सब्जेक्ट के साथ आता है। और हैड किसके साथ लगाएंगे, सबके साथ, लेकिन जो पास्ट में आपको कोई काम करना पड़ा। विल हैव टू, फ्यूचर में कोई काम करना पड़ रहा है, फ्यूचर में कोई काम करना पड़ रहा है तो उसके लिए विल हैव टू आएगा आपको फ्यूचर के लिए, राइट। और जो लास्ट है आपका फिर विश के लिए, आपको पता है कि मे यू लिव लॉन्ग आता है, मे ऑल ड्रीम्स, मे ऑल योर ड्रीम्स कम्स ट्रू। तो ये सब क्या है आपके, ये आते हैं आपके विश मांगते हैं। अगर आप किसी के लिए विश मांग रहे हो, लाइक मे गॉड ब्लेस यू, तो ये सारे विशेस के लिए आप मे का यूज करते हैं। ठीक है, डेयर होता है हिम्मत दिखाना, किसी काम की हिम्मत करना। यू डेयर टू चैलेंज हिम टू अ रेस, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है उसको रेस के लिए चैलेंज करने की। आई डोंट डेयर टू गो नियर द लॉयंस केज, भाई मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं लॉयन के केस के सामने जाऊं। तो जब भी आपको लगता है कि कोई हिम्मत वाली बात हो रही तो उसके सामने आपको डेयर लगाना है। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट योर modals. Okay, and I guess everybody will understand the modals there. And if you want to watch rest of the detailed video of grammar, just subscribe the channel, go to the playlist, select grammar option. For 3rd to 12th class, all the topics are given there. You can select your desired topic there, and writing session also there, as well as your literature part is given. So you must watch. If you want to watch that, then go to the playlist. Thank you so much for watching the video. Have a marvelous day, everybody.